Good evening, respected guests and our remote audience. It's really nice to have you all in this session. I, Vishakha Singh, welcome you all in the session of exploiting sacred natural resource extraction of native tribal lands. The discourse of rights offers a robust analytical framework to examine contemporary reality against a normative goal, which is a central issue with respect to the marginalized sections of the society, amongst which the Adivasi communities have suffered deprivations from myriad kinds, despite several provisions for them in the constitution. A legal framework for the implementation of these provisions are several targeted public policy initiatives. This session is organized by APNA, which is Association for Parivartan of Nation, a non-profit organization registered under Society Act 1860, started by young graduates to tackle some of the most pressing issues of Jharkhand. In the year 2019, the organization decided to work in the direction of sustainable development goals to meet the United Nations Agenda 2030, addressing and tackling issues such as gender inequality, human rights and climate change, among others, by organizing several awareness campaigns, seminars, competition, nukkad sabhas, workshop, roundtable discussions in various cities and villages, focusing mostly on tribal areas. APNA has worked hard towards securing right to education admissions for the disadvantaged groups on roughly 700 seats in Ranchi. APNA was started in 2018 with a mission to contribute towards a just society and eliminate discrimination and inequality of any kind. Today's discussion is also a step in the same direction. Our speaker of the session is Ashish Biruli, who belongs to the Ho Adivasi community of Jharkhand. He is an anti-nuclear activist, a photojournalist, and a TEDx speaker. He is one of the founding members of Adivasi Lives Matter and Fridays for Future Jharkhand. Now, I would like to hand over the platform to Mr. Ashish. Sir. Johar everyone. First of all, thank you Apna for giving me this opportunity and share my experience with you all. The topic which I have been given is something very important and should be concerned by everyone. Uh, like we Adivasi, first of all, the issues related to Adivasi is not uh, is not a topic which everybody is concerned about because Adivasi are looked upon as a very lower class people, and issues related to them is like very like उनके साथ जो हो रहा है होने दो. That is the ideology what I have observed most of the time. So I would first of all I would like to give you some experience which I have in my life being an Adivasi. So what happens is uh, what happens is when I was studying in Ranchi, I did my schooling in Ranchi, and when I was given when I was asked to give an introduction about myself, I told my friends that I belong to an Adivasi community. Everybody started laughing. Like Adivasi is someone is always considered like a jungly person or very uncivilized person. So I was very demoralized. I was feeling very ashamed in front of people. And this is an ideology. This is this is ये एक ऐसा सोच है जो बहुत खराब लगता है हमें और और यही सोच के कारण अ, यही सोच के कारण जो भी इश्यूज हम फेस करते हैं आदिवासी उसको देखा नहीं जाता है। तो आज के जो टॉपिक है इसमें क्या होता है कि आदिवासियों के साथ जो भी मिनरल्स है उनके जमीनों पे उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है और कोई उनके फेवर पे कोई कुछ नहीं बोलता है। रीजन कि वो आदिवासी है सबसे पहला। रीजन दूसरा
कि एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर वही जगह पे अगर कोई अपर कास्ट आदमी होता और उसके लैंड पे अगर इमेजिन करो कि कोई मंदिर है, मंदिर के नीचे पे मिनरल है, तो वो मिनरल क्या एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। लेकिन वही जगह पे जहाँ आदिवासी अ, हजारों साल से रह रहे हैं, या फिर ऐसे सेक्रेड ग्रुप जहाँ जायर खान जिसे कहा जाता है आदिवासियों का पवित्र स्थल, उसके नीचे अगर मिनरल रहता है तो क्या होता है। तो फैक्ट यही है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सरकार ध्यान बिल्कुल नहीं देती है। और मैं सरकार को दोष इसलिए भी देता हूँ, कहीं ना कहीं वो कंसर्न नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन गवर्नमेंट आर फ्रॉम अपर कास्ट। कोई ऐसे गवर्नमेंट में ऐसे पोजीशन नहीं है जहाँ पर, तो फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट, ये कोई ऐसे नहीं है कि आई हेट गैर नॉन आदिवासी पीपल, ऐसे नहीं है। लेकिन जो फैक्ट है मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक ये है। तो मैं जो जगह पे रहता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ ये तिलेतांड मेरा गांव है, जादूगोड़ा है, जादूगोड़ा तिलेतांड है। और यहाँ पर यूरेनियम माइनिंग हो रही है 1964 के आसपास से। और यहाँ पर यूरेनियम खनन के बाद यहाँ पर जो प्रोसेसिंग मिल है, तो रॉ मटेरियल यहाँ यूरेनियम माइनिंग होती है। उसके बाद यहाँ पर एक माइनिंग है जहाँ पर रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, एनरिच किया जाता है। एंड इन दिस प्रोसेस लॉट्स ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इज जनरेटेड, एंड दैट वेस्ट इज dumped next to my village. Like right now, I am living like 500 meters from the telling pond, radioactive waste, and ये हो रहा है। और इंटरनेशनल लॉ कहता है कि आप ह्यूमन रेसिडेंट के यहाँ पर कचरा आप फेंक नहीं सकते। और कहीं ना कहीं ये वायलेशन हो रहा है, जो जो रूल्स है डायरेक्टली वायलेशन हो रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले सवाल यही आता है, बार बार यही सवाल आता है, ये क्यों हो रहा है। क्योंकि ये आदिवासी पॉपुलेटेड एरिया है। अगर यही बात, अगर यही चीज अर्बन एरिया पे देखने को नहीं मिलता है, अर्बन एरिया में अगर माइनिंग की तो दूर, कचरा की तो दूर, सबसे पहले तो माइनिंग ही नहीं होगी वहां पर। और एक आप लोगों को और एक उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ की जो कचरा है, यहाँ पर जो मिल है, यहाँ पर एनरिच होती है, और उसके बाद यहाँ से हैदराबाद ले जाया जाता है, हैदराबाद न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में। वहां पर फर्दर एनरिच होता है प्लूटोनियम में। फिर वहां का जो कचरा है जो जनरेट होता है, उसे फिर जादूगोड़ा लाया जाता है फिर डंप करने के लिए। तो इमेजिन कीजिए कि इज देयर नो देर is there no other place to dump in Hyderabad itself? They are bringing back the radioactive waste to Jadugoda. और ये प्रेजेंटली तो नहीं हो रहा है, लेकिन दिस वाज हैपनिंग लाइक 10-15 years अगो। और यहाँ पर एक इफ यू सी लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज, देयर इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट गोइंग ऑन। तो जादूगोड़ा में भी सेम है, यहाँ पर भी हमारा मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट के कारण बहुत बहुत चेंजेस आया है। वी सक्सीडेड इन समथिंग, एंड हम लोग कुछ में भी अनसक्सेसफुल भी रहे हैं। तो मेन थिंग ये है कि जब आदिवासी समुदाय को आप देखते हो, तो आदिवासी समुदाय कैसे रहती है वो हम लोगों को जानने की जरूरत है। सबसे पहले तो आदिवासी समुदाय ऐसे समुदाय है जो जंगल के पास रहती है, जंगल से ही आश्रित रहती है, डिपेंडेंट रहती है। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे नज़दीक में ही जंगल है। हम लोग ज़्यादातर, शायद से हम लोग बाजार से ज़्यादा सब्जियां नहीं खरीदते हैं, हम लोग जंगल से ही खरीदते हैं। दातुन से लेकर के हमारे पर्व त्योहार में जो सामग्री यूज होती है, वो भी जंगलों से ही आती है। जैसे कि हमारे पूजा पाठ में
बिना साल पत्तों के, और भी बहुत कई पत्ते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो पत्तों के बिना हमारा पूजा ही अधूरा नहीं रहता है। ठीक है, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि अ, हमारे पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज यानी कि हमने जो अपने पूर्वजों से सीखा है, जो कहीं रिटन रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन कहानियों के थ्रू जो हमें मिलता है, जैसे कि गांव सब में आप देख सकते हो, अगर आप झारखंड से हो तो आप शायद से ये बहुत कॉमन होगा कि आप सुने होंगे कि आदिवासी समुदाय में जॉन्डिस जैसे बीमारियों को आयुर्वेदिक से ठीक किया जाता है, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट होता है। और दूसरा ये है कि सांप काटने से भी जो उसका जहर निकाला जाता है, वो भी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज होता है। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये नॉलेजेस को कमर्शलाइज्ड नहीं किया जाता है और ये सबको शेयर नहीं करते हैं। तो बोला जाता है कि इतना सारा नॉलेज अगर एक समुदाय के पास है, तो वो जब आप कोई प्रोजेक्ट आता है और वहाँ की जो मिनरल को एक्सट्रैक्ट करती है, तो वो सिर्फ समुदाय को नहीं मार रही है, समुदाय के साथ उसकी ट्रेडिशनल नॉलेज को, उसकी जो सस्टेनेबल लिविंग जो स्टाइल है, जिससे पूरा दुनिया सीख सकता है कि आदिवासी किस तरीके से जीते हैं, वो भी खत्म हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ जायर थान का बात करते हैं, जायर थान इज समथिंग वेरी सेक्रेड इन आदिवासी कम्युनिटी। एक कोट बोला जाता है, मंदिर टूट सकता है लेकिन जायर थान नहीं टूट सकता। और ऐसे कोट करते हैं लोग, रीजन ये है। और इसमें और एक बात है कि जो जायर थान है उसका इम्पोर्टेंस समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर गांव पे, हर आदिवासी गांव पे एक जायर थान होता है। और माइनिंग के कारण ना जाने कितने जायर थानों को उजाड़ा गया है। लिविंग एग्जाम्पल खुद जादू घोड़ा ही है। लेकिन जादू, इससे पहले जादू वो बात में जाने से पहले जायर थान के बारे में हमें जानना जरूरी है कि कोई भी समुदाय, आदिवासी समुदाय जब गांव का निर्माण करती है, तो सब गांव का निर्माण होने से पहले जायर थान बनता है। जिसे जिसे हाँ, जैसे कि मैं हूँ आदिवासी समुदाय से हूँ, तो हम लोग देसावली बोलते हैं। मुंडा में जायर बोला जाता है, उरांव में उसको सरना स्थल बोलते हैं। तो ये जो है, गांव के निर्माण से पहले ही अ, उसे गांव के निर्माण से पहले जायर थान निर्माण होता है। और जायर थान में पर्टिकुलरली जो पेड़ है, सखुआ के पेड़ होते हैं, और उसे हमेशा बचा के रखा जाता है। गांव के लोग पेड़ नहीं काट सकते हैं। तो जैसे बोला जाता है कि अगर दुनिया में ऐसा कौन सा जगह है जहां पर सबसे सेफ रहता है ट्रीज, तो वो एक जायर थान आप बोल सकते हो, क्योंकि ना गांव के लोग उसे हानि पहुंचाते हैं। जंगलों के पेड़ आप काट सकते हो, जैसे कि घर बनाने के वक्त पे, या लकड़ी अगर कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर आप कुछ यूज करना चाह रहे हैं तो जंगल का। लेकिन आप जायर थान का आप नहीं काट सकते। तो अगर कोई माइनिंग प्रोजेक्ट्स आती है, तो उसके साथ ऐसे एरिया भी नष्ट होते हैं जहां पर पेड़ सुरक्षित रहते हैं हमेशा के लिए। तो ये एक बहुत दुखद बात है। तो ये एक है, एक पॉइंट है। दूसरा बात ये है कि जितने भी इश्यूज है, जितने भी हाँ, और ये मैं बोलना चाह रहा था जादूगोड़ा पे। जादूगोड़ा पे हो ये रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर टेलिंग पॉन्ड्स है, टेलिंग पॉन्ड में जो कचरा फेंका जाता है, वो टेलिंग पॉन्ड के बगल में एक जायर जायर थान है। तो वो जायर थान जो है वो भी कचड़े के कारण डूब रहा है। तो उसको अगर आप देखा जाए तो ये माइनिंग प्रोजेक्ट के कारण एक जादूगोड़ा का जायरथान भी डूब रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो और अभी पूजा करने लायक भी नहीं है। द सखुआ ट्रीज which are in that जायरथान are all dead of radiation। एक भी पेड़ जिंदा नहीं है। डेड ट्रीज इन जायरथान सेक्रेट ग्रुप, जो कि
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है जायर थान में पेड़ों का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं जब गया था वहाँ पर देखने के लिए, वहाँ पर पूजा भी किया जाता है, तो सारे पेड़ मरे हुए हैं। और जो कचरा है सीपेज वाटर टेलिंग पॉन्ड का, वो भी सीपेज करता है जायर थान पे, जिसके कारण वो ड्राउन हो जाता है जायर थान। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन है यहाँ पर। दूसरा बात, और एक एग्जांपल आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि नियमगिरी नियमगिरी जो है 2013-14 आसपास में एक मूवमेंट हुआ था नियमगिरी हिल्स में। तो एक वेदांता कंपनी है जो वहाँ पर माइनिंग करना चाहती थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने मना किया। दे प्रोटेस्टेड, लॉट्स ऑफ पीपल प्रोटेस्टेड, द होल डोंगरिया कोंड कम्युनिटी प्रोटेस्टेड देयर, and they told that we cannot let Vedanta to take away our forest, because this whole forest is our god. तो एक नियम राजा बोला जाता है, एक उनके जो एक डाइटी है, तो वो बोलते हैं कि वो पूरा जो जंगल है उनका, पूरा वो जंगल ही उनका भगवान है। तो हाउ, मतलब कि हमारे भगवान को कोई नष्ट करे, वी कैनॉट अलाउ, उनका ये कम्युनिटी का कहना था। और वो नहीं, एंड दैट मूवमेंट वाज वेरी सक्सेसफुल। लेकिन हर जगह पे ये नहीं हो रहा। दे वर सक्सेसफुल बिकॉज पीपल वेर अवेयर, एंड उनका एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे जगहों पे ये नहीं हो पाता है, लोगों को मार दिया जाता है। मारा इसलिए भी जाता है बिकॉज हम लोग शायद से ज़्यादा मंदिर को समझते हैं। बाकी बाकी जो डाइवर्स कम्युनिटीज है, उनका क्या ट्रेडिशन है, उनका क्या कल्चर है, वो कैसे मानते हैं, क्या पूजते हैं, वो हम रेस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। तो ये एक है। तो एग्जांपल के लिए कि अगर कोई अगर जैसे मान लीजिए कि हम लोग मारंग बोंगा को मानते हैं, मारंग बुरु को मानते हैं, और और दूसरे कम्युनिटीज में और भी बहुत सारे गॉड, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जीसस है, और हिंदू कम्युनिटी में बहुत सारे भगवान हैं, जैसे कि कोई भी भगवान, कृष्ण को ले लीजिए। तो अगर ऐसे होना चाहिए कि मैं कृष्ण भगवान को रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप मारंग गुरु को रेस्पेक्ट करो। अगर आप सोचोगे कि आपके सर्वश्रेष्ठ अगर कृष्ण भगवान है, तो फिर आप जो मारंग गुरु के बारे आप नहीं जानते हो, तो आप उसको लगेगा कि ये मारंग गुरु मायने नहीं रखता। तो वो भी एक है। दूसरा बात ये है, अनफॉर्चुनेटली आदिवासी कम्युनिटी पे इसको ब्लेसिंग बोला जाए या कर्स बोला जाए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में जितने भी मिनरल्स है वो ट्राइबल बेल्ट्स में ही पाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं माइनिंग इसलिए भी होता है क्योंकि वो हमारे नेशन का इकोनॉमी, जीडीपी में मदद करता है। और अभी का जो मॉड कॉन्सेप्ट है, जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। हमें 24 घंटा बिजली की ज़रूरत होती है, हमें गाड़ी चाहिए जो कि मिनरल से ही मुमकिन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वी ह्यूमंस, हम जो कंज्यूम करते हैं और हमारी जो आदतें बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोसेस से आ रही है कि जहाँ पर कुछ आदिवासी समुदायों को उजाड़ा जाता है, उसे मारा जाता है। तो हम अगर कंज्यूम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल। और आज के टाइम पे ये कहना कि सिर्फ बाकी लोग ही कर रहे हैं, अगर मैं खुद आदिवासी समुदाय से हो करके अगर मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं खुद मैं भी जिम्मेदार हूँ, खुद अपनी कम्युनिटी को विनाश की कगार पे ले जाने के लिए। तो ये भी एक है। और ये कंटिन्यूअसली मैंने बचपन से ही विटनेस किया है, ये जादूगोड़ा की जो प्रॉब्लम है, रेडिएशन इशू। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि लोग कंसर्न नहीं होते हैं, और लोग कंसर्न कब नहीं होते हैं, ये कब मालूम चलता है हमें,
कि uh, we don't see news platforms talking about our issue. मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोलती है, अखबार नहीं बात करती है इश्यूज के बारे। क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि फिर वही बात आ जाता है, क्या हम आदिवासी हैं इसलिए नहीं बोलती है, या फिर अपने सरकार जो कार्य कर रही है उसको छुपाने की कोशिश करती है। सिमिलर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ बस्तर में। छत्तीसगढ़ बस्तर में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज है जिसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इसलिए पीटा जाता है, इसलिए मारा जाता है, और वो हमारे क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने जंगलों को बचाने के लिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर है, आ रहे हैं, जिसके कारण उनको अपने जमीन जमीन खोना पड़ रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं, और कहीं ना कहीं वो न्यूज़ जो है लोगों के पास नहीं आता है। तो उससे ये समझ में आता है कि देर आर सम पीपल हु आर ट्राइंग टू हाइड दोज फैक्ट्स। वो एक है। तो ये मैंने जादूगोड़ा पे यही सेम सिचुएशन है। जादूगोड़ा इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट प्लेस, क्योंकि जादूगोड़ा पे जो हो रहा है, अगर एक समय ऐसा था कि जादूगोड़ा मैंने अपने स्कूल पे बोला था एक बार कि मैं जादूगोड़ा से हूँ। किसी को मालूम ही नहीं जादूगोड़ा कहाँ है, क्योंकि ये जादूगोड़ा किसी को मालूम नहीं है। जबकि हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जादूगोड़ा भारत का पहला यूरेनियम कंपनी यहाँ पर खुला है, जादूगोड़ा में। और जो माइनिंग है वो इंडिया का सबसे डीपेस्ट डीपेस्ट माइनिंग, वन ऑफ द डीपेस्ट माइनिंग है, सबसे ज्यादा। तो ये यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा सा प्राउड फील करते हैं, लेकिन प्राउड फील करते हैं, लेकिन इससे जगह को उतना लोगों के बीच में फेमस नहीं किया गया। आप जितना जगह को फेमस करोगे उतने लोग आएंगे, और यहाँ की जो कारनामे हैं सरकार की वो लोग समझ पाएंगे। तो ये एक मुद्दा मुझे समझ में आता है, ये एक है। तो मैं क्या किया कि मैं तंग आ गया था। मैं तंग आ गया था कि यहाँ की जो इश्यूज है मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कंसर्न नहीं है। बिकॉज व्हाट वी एक्सपेक्ट एज एन एक्टिविस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, तो मैं बाद में बना। फर्स्ट तो मैं एक एक्टिविस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक एक्टिविस्ट का बेटा हूँ। तो वो जो अपने फादर का फुटस्टेप में मैं भी हूँ, और मैं वो हमेशा वो चाहता था कि हमें सपोर्ट मिले। सपोर्ट कैसे मिलेगा जब लोग हमारे बारे में ज़्यादा जानेंगे? कैसे जानेंगे? न्यूज़ अखबारों में अगर हमारी बातें आएगी, तो वो नहीं हो पाता था। साल में एक दो कवरेज होता था, ज़रूर होता था, लेकिन दैट वाज नॉट एनफ। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, व्हेन आई राइट आर्टिकल अबाउट जादूगोड़ा, 5-6 दिन के लिए वो बहुत हॉट टॉपिक हो जाता है, बट आफ्टर दैट एवरीबडी फॉरगेट्स जादूगोड़ा। तो वो होता था। तो व्हाट आई थॉट इज कि डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग होना चाहिए जादूगोड़ा के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर फोटो डॉक्यूमेंट्री किया था, यही मोटिव के साथ कि people should know more about Jadugoda, and in return we would get solidarity from people in times when we do movement. तो ये एक था, and more and more people would talk about Jadugoda। तो ये था। तो ये मोटिव के साथ हमने शुरू किया था। सो इन 2016 a friend a friend called a friend named Ankush Vengur Lekar, he came in his cycle to Jadugoda. He was traveling to three states, Chhattisgarh, Odisha, and Jharkhand, to know about tribal community. And we happened to meet, and I told him about my work, and he was inspired. Like, it was not common for him that a tribal boy is writing story, is uh, telling his own story। तो ये बहुत कॉमन नहीं है, बिकॉज इवन ट्राइबल स्टोरीज आर टोल्ड बाय नॉन आदिवासी पीपल, नॉन ट्राइबल पीपल। ये हमेशा से होता है कि हमारी कहानियां भी दूसरे लोग ही बोलते हैं। और क्यों?
ऐसे होता है। तो मैंने सोचा कि लोग तो इंटरेस्ट पे बोलते हैं ना, कि हम लोग, हमारा इंटरेस्ट रहेगा तब हम कहानी बताएंगे लोगों का। तो मैंने क्या किया कि विदाउट इंटरेस्ट, मैं तो वो इंटरेस्ट या पैसा के लिए मैंने नहीं किया, मैं तो वो अवेयरनेस के लिए ही किया। तो ये सारी चीजें जो है मैंने, वो मेरे जो दोस्त है उनको मैं बताया। तो वो उन्होंने कहा कि "आ, आप जो काम कर रहे हो इम्पोर्टेंट है, क्यों ना ऐसे और भी लोगों को हम लोग एनकरेज करें जहाँ पर वो अपनी कहानी बता सके, ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार करेंगे। तो अंकुश, me and Isha, we all started this initiative, Adivasi Lives Matter. Adivasi Lives Matter is actually a media platform where Adivasi youth write articles, make videos, and we publish in this platform. So yeah, so right now we are working with the Adivasis of three states. One is Tripura, Tamil Nadu, and Chhattisgarh. And the reason why we started in these three states is because हमें यहाँ की स्टोरीज ज्यादा सुनने को नहीं मिलते हैं। झारखंड अगर हमें देखा जाएगा तो झारखंड, यहाँ की जो आदिवासी है, सरकार भी शायद पॉलिटिकली अवेयर है यहाँ पर, अ, मंत्री भी आदिवासीज है और मूवमेंट्स भी इतने हुए हैं कि कंपेयर टू अदर स्टेट्स थोड़ा सा आगे है झारखंड। लेकिन आदिवासीज ऑफ तमिलनाडु, आदिवासीज ऑफ त्रिपुरा, आदिवासीज ऑफ छत्तीसगढ़, वहाँ की जो कहानी है वो थोड़ा सा हमें नहीं मिलते हैं। तो हम लोगों ने ये तीन स्टेट्स को चुना जहाँ की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो ये हम लोग डिजिटल स्टोरी टेलिंग, जिसको हम लोग सिटीजन जर्नलिस्ट भी बोल सकते हैं, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोले। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ this is we are encouraging them to tell their own stories in their own native languages। ये हम लोग कर रहे हैं। और वी आर पेइंग आवर सिटीजन जर्नलिस्ट, हम लोग उसे कंटेंट क्रिएटर्स ही बोलते हैं, तो कंटेंट क्रिएटर्स को हम लोग पे भी कर रहे हैं अपने, जो भी जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। Thank you, sir, for enlightening us about the life of Adivasis. Now I have few. So the first question is, why are Adivasis demanding for separate religious code? The first thing is, there was a time when Adivasi used to accept, uh, like Adivasi is a community who, in literacy rate they are very down. Okay, they are very low. So when Adivasi started going to schools, when they started going to schools, they never. They actually they in the initially they never had a name of any religion, no, not even Sarna. But when they got admission in schools, they were asked to put tick on the columns of religion. So there were only four options, right? Hindu, Christian, Sikh, and Muslim. So they used to ask themselves like, they are not Christian, they are not Hindu. No, they are not Christian, they are not Hindu nor Sikh, because all these religion are recognized by their outfits. So the teachers or other people only encourage them, that they told them that you belong to Hindu, Hindu religion. So they started taking on Hindu part. So after a long period of time, the community realized that they don't belong to Hindu religion, because the tradition, the customs which they follow is very separate from Hindu. So there was a time of realization, and they thought that they are being fooled by the political leaders. And that time, that
they there is a very long history of how they named, how they came to a conclusion that what name they should give to their religion. The like right now, our religion is known as Sarna, and we don't have a religion code. So that's the only thing why they uh, they need another code of is they have realized that they don't belong to Hindu religion. That is the only thing. Okay, sir. Now, the second question is what is the importance of having Adivasi voices in Indian media? The importance of is very important uh, because uh, the total population of like the total population of Adivasis in India is around say 8.6% of the total population of India, and that is a huge number. But there is no there we don't happen to hear stories from that huge community. Only 2-3% of stories we happen to hear, and other stories like if I uh, like there are so many stories that will benefit the whole community, not like the stories from their culture. And what I talked about, like I talked about the traditional, the medicinal knowledge which Adivasis have, those knowledges are also very important that people should know. And the way the Adivasi community lives is very important. But what happens is when other people start writing about them, there are lots of misrepresentation, and it confuses a lot of people. And when Adivasi people read those articles, they say, अरे ये तो गलत लिखा है उन्होंने, ये तो हमने ऐसे तो हमने हमने नहीं कर हम तो ये फॉलो नहीं करते हैं. So those understandings, it confuses a lot of community. So it is very important that Adivasi themselves start writing, we become a part of media, and it will only happen when they will be accepted. This is one thing which I believe. Now, the next question is as you yourself belong to Adivasi community, could you please specify the hardships faced by them due to natural resource extraction from their native lands? Mm, the the thing is the thing is in Adivasi community, land is like God to them, like mother to them. Land is everything to them, and land is the only thing. जैसे बोलते हैं, if there is no money, अगर पैसे नहीं है, even then Adivasis can survive. Q because they have their land, and if land is snatched away from them, then they they have to be dependent. They have to find jobs. They have, तो जैसे बोला जाता है कि मजबूर कर दिया जाएगा, अगर उनके पास जमीन नहीं रहेगा तो वो मजबूर हो जाएंगे एक जॉब ढूंढने के लिए. अगर जॉब नहीं भी है, जमीन है, तो एटलीस्ट वो अपना पेट पाल सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, भूखे नहीं मरेंगे. तो ये एक है. ये एक है. दूसरा ये है कि आदिवासी कम्युनिटी पे जब शादी ब्याह होता है, when marriages happen, it's very important that they do all the ceremonies of marriage in their own land. And during when anybody dies in their community, it's very important that they bury the dead body in their own lands. और वो बहुत important है because जहाँ पर बरी किया जाता है आदिवासी कम्युनिटी, that is the history.
जैसे कि हम लोग सासंग धिरी बोलते हैं इन माई कम्युनिटी, सासंग धिरी। एंड सासा धिरी ही एक सिंबल है कि कितने जनरेशन हम वहां पर रहे हैं। लाइक वी आर स्टेइंग इन जादूगोड़ा। वी I belong from वो community. We have migrated in जादूगोड़ा from West Simbu, और यहाँ पर हम लोग करीबन we are living here since 80-90 years। तो वो हमारा वो सासन देरी से मालूम चलता है, क्योंकि मेरे परदादा, फिर मेरे दादाजी का सेमेट्री बनाया हुआ है, फिर मेरे पापा का, मेरे उसके बाद मेरा बनेगा। तो दैट इज अ सिंबल। कहीं रिटर्न रिकॉर्डेड तो नहीं है वो, इसलिए लैंड वेरी इंपॉर्टेंट है दो तीन फैक्टर्स के लिए। और और दूसरी बात ये है कि सबसे खतरनाक बात ये है कि जमीन हमारी है, लेकिन 5 फीट के नीचे अगर कुछ मिनरल अगर हो जाता मिलता है तो वो सरकार की हो जाती है। ऐसे कोई लॉ नहीं है कि आदिवासी के लैंड के नीचे पे जो मिनरल होगा वो आदिवासी का हो जाएगा। वैसे बिल्कुल भी नहीं है। जमीन आपकी है, लेकिन नीचे पे अगर कुछ पदार्थ मिल जाता है तो वो आदिवासियों का है। तो इसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ है, बहुत ज्यादा। तो जैसे मैंने बोला कि अगर अगर मिनरल मिल जा रहा है, देन दैट पर्सन्स आदिवासी लाइफ इज जस्ट रियून, तो बर्बाद हो जाता है पूरा। तो ये Okay, sir. Now the last question is, what according to you would be the most probable steps to be taken to tackle this issue? no, the first thing is, if the government is trying to increase its economy, then there are various other ways. Like if uh, if uranium is found on Adivasi land, we have to understand what uranium does actually. What uranium ultimately does is it produces nuclear weapons, and it generates electricity. And I don't think nuclear weapons is very important. The United Nations has already ordered to ban it, and lots of countries has banned, and no need to produce more nuclear weapons. And other thing is, if uh, if the focus is on generating electricity, there are many alternatives. The alternatives are renewable energies. So government can switch on to renewable energies. Then there is no need to. Uh, there is one. This is a point where Adivasi can get justice, and जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो बंद हो सकता है। द अदर थिंग इज इकोनॉमी। अगर हम लोग इकोनॉमी अगर हम लोग देखते हैं, अगर इंडिया का इकोनॉमी ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए तो और भी ज़्यादा, वो तो मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, तो इसलिए इसमें तो नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कि देर आर लॉट्स ऑफ laws that has been made for protecting Adivasi lands. Those laws should be implemented properly. Like CNT Act should be, it is implemented, but there is another law, that Land Acquisition Act, which is much more dangerous, and that law is actually made by the British people, and it is just adopted same to same copy pasted in our Indian Constitution. तो ये तो है कि देयर शुड बी सम अमेंडमेंट्स वेयर जहाँ पर आदिवासियों के लैंड को और प्रोटेक्शन मिले, ना कि और कमजोर करे। वो एक हो सकता है। दूसरा ये है कि ग्राम सभा, लाइक पेशा कानून, एंड ग्राम सभा, लाइक फिफ्थ शेड्यूल एरिया जो है, ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए, जहाँ पर
people can decide कि अगर हमें कंपनी चाहिए तो we will allow, and if villages say that कि हमें नहीं चाहिए, then the government should listen. वो नहीं होना चाहिए कि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए कि मुझे जमीन, जैसे पहले के टाइम में जो राजा बोलते थे ना कि पहले के टाइम में राजा कोई कोई आदमी की बीवी को भी अगर पसंद कर लेता है तो वो ले सकता था बाय फोर्स। तो यही सेम गवर्नमेंट भी वही कर रही है कि मुझे ये जमीन आपका पसंद आया, आप हाँ बोलो या ना बोलो, मैं लेकर के ही रहूंगा। तो ये है, वो आदिवासियों का राइट्स है। अगर दे वांट तो वो खोलने अलाउ कर सकते हैं, एंड इफ दे डोंट देन गवर्नमेंट हैज टू लिसन टू देम। तो प्रॉपर implementation of laws should be done. Thank you very much, sir, for this enlightening session and for giving us a piece of your busy schedule. I'm sure that now audience has much better understanding of natural resource extraction on native tribal lands. Again, thank you, sir, for being with us. Thank you, Vishaka.